Sachin, start. Yeah, Sachin, am I audible? Yeah, you are too much. Absolutely, absolutely. Great, great, great. So I think it's almost 40 more seconds to go, and we will begin sharp at 3 p.m. And it's going to be a phenomenal session with Sachin today. And it's going to be a very power-packed session because the man who I have got today is filled up with energy. And guys, it's 3 right now, and I'm going to ask you a very simple question. We will start with asking one very simple question. How many of you want to increase? How many of you want to increase your sales without having a sales team, without having a big sales team, my friends? If yes, then definitely you are watching the right session, because this will be giving you a massive amount of freedom once you will be hearing the success story of Sachin, of how he entered into the Nanopreneur Club. This is going to be a phenomenal interview and a journey for each one of you, which will be very, very inspiring. And you will be taking a lot of golden nuggets of how Sachin cracked this code within a span of not even a month's time, my friend. This is going to be a phenomenal journey. Before I begin, I would just like to say the topic for today is from no video to a webinar of multiple hundreds people. This is going to be an impeccable journey which we are going to reveal and bust it out today, my friends. And before I begin, I would like to acknowledge each one of you who's watching this Facebook Live, even right away or even after. And thank you so much. Believe you me, you had an option to laze around or to just chill around, but you're watching this live. It shows your commitment and excellence. Thus, we'll make sure that you get the best value of your time and effort invested, my friend. Now, since Sachin is there around with me, I'm just going to take a minute's time, even less than a minute's time, to brief quickly about what Sachin is doing and how Sachin made this ever. So just a quick words about Sachin. Sachin is basically he's an entrepreneur, and he's into manufacturing of LED flashlights and emergency lights and lamps for more than 2 decades, my friend. He started his journey him own self by venturing into this business. He's truly passionate. I mean, as far as even I know him, about the power of subconscious mind. So you're going to get some golden nuggets about that as well, huh? Just stay tuned till the end. And also, he's working right now on the theory of belief. This is all what was there for Sachin. A very short brief, though there is a lot to learn from this guy, but a brief about him. And as far as all those of you who don't know me, I'm Ankur, an entrepreneur, author, and a coach and inventor of Nano Video Framework, through which I help business owners, entrepreneurs to grow and scale up their business in no means of time, without big resources, and which is investing 15 minutes a day, my friend. So over to you now, Sachin. My audience would love to listen from you that a little bit brief about your business model. Thank you, Ankur. Thank you. Thanks a lot for giving such an honor to invite me over here. And it's really an honor. Or I really want to thank you to put me here. इस जगह पे लाने के लिए आपने मुझे जहाँ इस मुकाम पे लाए हो, आपने मुझे जो चीज़ें सिखाई हैं, I really want to thank you. And now I would like to tell something about me. As Ankur, you already told everybody about this. That I started this venture in 2004. And since then, we are into manufacturing of LED torches, lights, lamps, solar lamps, lanterns, and the list goes on since then. And our business model is basically depends on the distribution network. So the distribution channel is handling our business. So sometimes it feels very nasty कि आप distributor के ना control में हो. Whatever distributor wants कि भाई आप उससे क्या चाहता है, you have to be there. जो वो चाहता है आपको करना पड़ता है. तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है एक मैन्युफैक्चरर के लिए, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर रहते हुए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, अपने बिजनेस को ग्रो करना. तो ये बिगेस्ट चैलेंज है एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज फार एज आई एम कंसर्न. Absolutely. I mean, you very well said. Even I have a distribution network, and I know, that how वो जब
है ना, वो उस पेन से मैं बहुत हद तक धीरे धीरे करके बाहर निकला हूँ, और मैं समझ सकता हूँ उस पेन को, बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पा रहा हूँ। और जितने भी दर्शक हैं जो इस चीज को देख रहे होंगे, डेफिनेटली ऑल द व्यूअर्स वुड बी वाचिंग, हु आर इनटू डिस्ट्रीब्यूशन, दे विल बी एबल टू कोरिलेट विद दैट। आई रियली अप्रिशिएट सचिन। नाउ आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड ब्रदर, कि किस तरीके की चैलेंजेस, अब जैसे आपने बताया कि सेल्स एंड मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, सो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि क्या कोरोना, प्री कोरोना या ड्यूरिंग कोरोना के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर, इफ यू कुड जस्ट क्विकली गिव अ लाइट ऑन दैट। या श्योर अंकुर भाई, देखो प्री कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना से पहले जो हमारा बिजनेस मॉडल था, जैसे मैंने भी आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इंक्रीज करने के लिए ना हमने एक्सपेंशन के लिए सेल्स टीम अपॉइंट करनी शुरू करी फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। एक्सपेंशन सेल्स टीम के ऊपर जो एक्सपेंस होता है ना, वो मतलब जो यहाँ पर सेल्स टीम को हैंडल कर रहा है वो समझ सकता है कि सेल्स टीम का जो एक्सपेंस है वो कितना बड़ा होता है, उसका जो बर्डन होता है, उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी निकालना इज लिटरली आई मीन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यू कैनॉट जज कि एक सेल्स टीम आपको क्या निकाल के दे रही है, कितना आप उससे कमा रहे हो, आप कभी जज नहीं कर पाते। बस आप जज क्या कर पाते हो कि सेल बढ़ानी है सेल्स टीम बढ़ाओ, सेल्स बढ़ानी है सेल्स टीम बढ़ाओ। और अल्टीमेटली एक दिन आता है जब आपकी सेल्स टीम का बोझ इतना बड़ा हो जाता है कि आपका बिजनेस उसके आगे छोटा हो जाता है। तो दिस इज अ ट्रैप। सो आई डोंट एवर वांट टू बी इन दिस ट्रैप। तो मैं हमेशा से छोटी सेल्स टीम के साथ काम कर रहा था लास्ट 2-3 ईयर्स से। बट अगेन एक चैलेंज वही है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, सेल्स टीम का बंदा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर उससे हायर मार्जिन की बात करता है, फंसाने की कोशिश करता है, XYZ बातें करता है। तो यू डोंट हैव अ चॉइस। जब तक आप अपने आप को एज एन अथॉरिटी एज ए नहीं प्रूव करोगे मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपने तरीके से हैंडल करेगा, सेल्स टीम आपको अलग लेके जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर आपको अलग लेके जाएगा। आप बिजनेस की ग्रोथ में अपने आप को एक ही जगह पे खड़ा पाओगे, इवन आफ्टर एक्सपेंस ऑफ लैक्स। एग्जैक्टली। और ड्यूरिंग कोरोना, क्या आपको लग रहा था, कि व्हाट चैलेंजेस वर यू फेसिंग जब ये सेल्स टीम उनके पास जा नहीं पा रही, उनसे बात नहीं कर पा रही, सो व्हाट वर दोस काइंड्स ऑफ चैलेंजेस, इफ यू कुड जस्ट क्विकली गिव अ लाइट ऑन दैट। यस, इट वाज अ ग्रेट चैलेंज। उस समय सेल्स टीम जा नहीं पा रही। हमने अपनी सेल्स टीम को, जो भी हमारी सेल्स टीम थी लास्ट ईयर्स में, उसको थोड़ा बहुत ट्रेन किया वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। बट वहां से क्या रिप्लाई आता था कि घर बैठे हैं, लॉकडाउन है यार, तुम्हारे को जान की पड़ी है, तुम सेल्स के लिए कॉल कर रहे हो। इस तरीके की लोग बातें करना शुरू हो गए थे। तो जहां पर आप समझो सेल्स टीम का भी ना मॉरल डाउन होना शुरू हो गया था। इनिशियली 15 डेज में हमने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, सेल्स टीम ने कॉलिंग स्टार्ट करी। बट उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ना सेल्स टीम को वो सेम काइंड ऑफ रिप्लाई मिलने लग गए कि अभी लॉकडाउन खुलेगा, कब खुलेगा तब देखेंगे, इस तरीके के जवाब आने लगे। तो इनिशियली मेरा भी जो है मोरल बहुत हाई था वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए। बट लेटर ऑन हुआ क्या, वो सेल्स टीम का भी मोरल डाउन हो गया, मेरा भी मोरल डाउन हो गया। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद हमने कॉलिंग बंद कर दी, चैप्टर क्लोज कर दिया। हम आराम से बैठे थे, चिल कर रहे थे कि यार लॉकडाउन खुलेगा, देखेंगे, सेल्स टीम जाना शुरू करेगी, ऑर्डर्स मिलेंगे तब काम करेंगे। टिल देन वी वर सिटिंग एंड चिलिंग एंड सिपिंग कॉफी। My God. So that means a lot of money was already being expended in terms of salaries, in terms of the man hours, but they were not being utilized properly. That's what exactly. एग्जैक्टली दिस इज हैपनिंग। सैलरीज आपको सेल्स टीम को यू हैव टू पे। आप कट कर लोगे, 10% कट कर लोगे, 20% कट कर लोगे, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन ऑफ यू एंड योर सेल्स टीम। मतलब लेकिन आप नहीं कर सकते, अल्टीमेटली यू कैनॉट डू इट। तो आपको एक्सपेंस आपके डाउन है, मीटर आपका डाउन है, खर्चे आपके चालू है, यू हैव टू बियर इट, नो ऑप्शंस। Wow. So how come then what solution then helped you out, and how did it work it out? We would love to listen. अंकुर भाई, सोल्यूशन तो खैर आपने ही दिया था। वन इवनिंग जब आपने मेरे को, आई गॉट योर मैसेज ऑफ दैट नैनो वीडियोस, तो आई दैट क्लिक्ड मी कि यार नैनो वीडियोस क्या है। आपसे मेरी ब्रीफिंग हुई, थोड़ी बातचीत हुई, आपने मुझे कन्वे किया विद इन 5 मिनट्स ऑफ टाइम। आई अंडरस्टैंड कि दिस थिंग इज समथिंग बिग, समथिंग गुड फॉर मी। और मैंने जैसे ही उसके अंदर जंप इन किया और उस चीज को स्टार्ट किया, और आज जहां मैं पहुंचा हूं, यू नो द एवरी पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो इट इज ऑल अबाउट जस्ट दैट मैसेज। वो शाम के 5 बजे थे, मैं आराम से बैठ के जो मैसेज पढ़ रहा था आपका, और मैंने 5:15 पे आपको कॉल किया, और हमारी 15 मिनट की कन्वर्सेशन में एवरीथिंग वाज क्लियर एंड आई जम्प्ड इन। And so was it a coincidence? Now what do you feel, was it a coincidence? नहीं अंकुर भाई, देखो अब इस चीज के लिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। मैं एक स्टोरी, जो जैसे हम लोग मिले थे, हाउ वी मेट, मैं वो एक बार बताना चाहूंगा। Oh my God, yes. Why not? That will be a great. if you allow Yeah, no, absolutely. So guys, अंकुर भाई और मैं मिले on a vacation. I was on a vacation in Mussoorie, और it was around 10 AM in the morning. मैंने ब्रेकफास्ट किया था, मैं और मेरी बेटी
अंदर से बाहर निकल के आ रहे थे, एंड अंकुर भाई इज सिटिंग विद हिज डॉटर, और बाहर के लॉन में वो ना अपनी डॉटर से कुछ बात कर रहे थे. He was teaching his daughter about some gratitude kind of thing. वो gratitude की उसको power और उसकी ना उसको importance समझा रहे थे. और मैं कहीं लगभग लगभग 4-5 फुट दूर खड़ा था, और I overheard the words gratitude. बेटा ऐसे करना चाहिए, God को thank करो, आप इस वेकेशन पे हो, इतना अच्छा आपको फूड मिल रहा है. और जैसे ही मैंने वो वर्ड सुने, मैंने अंकुर भाई की आंखों में देखा, एंड ही ऑल्सो लुक्ड एट मी एंड वी स्माइल्ड ईच अदर. और मैं तुरंत जाके अंकुर भाई के पास बैठ गया, और हम वी स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन. सो दिस इज हाउ वी मेट. अब इस सारे ये सारी बात बताने का अंकुर भाई रीजन क्या है, मैं यहाँ क्यों बताना चाहता हूँ कि इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंस. Oh yes. You and I attracted each other because we both work on same frequency. आपकी जो फ्रीक्वेंसी और मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आप सोचते हो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, बिलीफ सिस्टम के बारे में, exactly I was thinking and I was working from last 3-4 years on this topic only. And I was so excited to see you over there. यार वेकेशन पे आया हूँ ना, और अपनी मर्जी की अपनी मतलब का बंदा मिल गया. I was so happy to see you over there. Wow, wow, phenomenal! I think this is truly. I mean, it reminds me of that day when we had a great time in Mussoorie. It was a lovely weather out over there, and बहुत ही amazing time था. I think and believe you me, even I strongly believe in this, Sachin, that nothing is a coincidence. Everything in life is happening for a reason and a purpose behind it. So हर चीज हमारी लाइफ में एक रीजन और एक पर्पस के लिए होती है, और आई थिंक you strongly vouched for it, and since you are a subconscious guy who's like expertise and who has a deep passion for this subject, so I truly now understand after listening it from you and from your experiences. I really I mean, it's amazing. It's amazing. Now Right. the next very important thing. Yeah, Sachin, over to you. मैं एक चीज और कन्वे करना चाहता हूँ कि जो भी एवरी सिंगल पर्सन हु इज वाचिंग दिस राइट नाउ, दिस फेसबुक लाइव और इन जूम मीटिंग, जो भी लोग देख रहे हैं, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस. Oh, दे yes. अट्रैक्टेड दिस थिंग इनटू देयर लाइव्स. एवरीथिंग इज अट्रैक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ. आज जो भी अपनी सेल्स को ग्रो करना चाहता था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ही वाज स्टक समवेयर. वो ही लोग आज इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, और वो आज यहाँ पर बैठे हैं बिकॉज दे अट्रैक्टेड इट. So this is the reason of telling this coincidence and attraction वाली theory आपको यहाँ बताने के लिए. I think it's purely you going into that law of attraction. I think it's exactly actually. So now Sachin, quickly diving into कि जब आपने when you started the course of videos, and what was going on in your mind before doing videos? मतलब क्या लग रहा था आपके दिमाग में? एक होता है ना preconceived, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है जब हम किसी भी नई चीज को करते हैं. आपने कभी वीडियोस नहीं बनाया था, जैसे आपने मुझे बोला. So right. What was in your mind? We want to know that. अंकुर भाई देखो, as far as videos are concerned ना, जैसे ही आप किसी वीडियो की बात करते हो ना, तो एक कैमरा की जो हिच होती है, वो मतलब आप किसी नए बंदे को कैमरे के सामने खड़ा कर दो, आई एम श्योर उसको पसीने पसीने हो जाएगा. ही कैन नॉट टेक अ 30-second शॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा. और सेम टू सेम हालत मेरी भी थी. जब आपने वीडियो बनाने का सारा प्लान दे दिया और आपने बोला जाओ 2 वीडियो बना के आओ, मतलब इट लिटरली टुक मी everything out of me to make those 2 videos. मतलब आप, मैं और मेरी बेटी अहाना was there for making the videos. She supported me a lot. मतलब a lot means a lot. तो उसने बहुत हेल्प करी, उसने सब चीजें अरेंज करी, उसने मेरे को टॉपिक सजेस्ट करे. तो शी इज अ डार्लिंग फॉर मी, और मतलब उसकी हेल्प से ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ. Wow, this is phenomenal. This is amazing. So और आपके दिमाग में क्या questions, क्या misconceptions, क्या problems चल रही थी before you मिसकंसेप्शन तो अंकुर भाई ये थी कि क्या मैं वीडियो बना पाऊंगा, वुड आई बी एबल टू मेक अ वीडियो, और जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वुड आई बी एबल टू डिलीवर द कंटेंट, क्या मैं उस तरीके से उस बात को बोल पाऊंगा. बिकॉज आई वॉज नॉट वन ऑफ द गाय जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं. आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद टॉकिंग. तो मैं बहुत ज्यादा ना इन सब चीजों के साथ, कैमरे के साथ या बातें करना या कन्वे करना या अपने थॉट्स को शेयर करना, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस. तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. मतलब एक नॉर्मल बंदे के लिए और मेरे लिए, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था इसको कर पाना, बट थैंक्स टू यू, आपने स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्ड करके यहाँ तक लेके आए. आई रियली थैंक यू. Awesome. It was क्या I think ये होता है. बहुत लोग मतलब इतने लोगों से मेरी बात होती है, वो ये बोलते हैं कि बहुत लोगों के दिमाग में होता है पता नहीं मैं वीडियोस बनाऊंगा, लोग मेरी वीडियोस देखेंगे नहीं देखेंगे, मैं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा. So it's a very I would like to say, Sachin, it's a very genuine kind of a feeling that, I mean, to be very honest and vulnerable, ये हम सबके अंदर होती है. मेरे अंदर भी थी, आपके अंदर भी है, but it's just that कि धीरे धीरे आप एक्शंस लेने लगते हो, तो आई थिंक देन इट स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग स्टेप बाय स्टेप.
एग्जैक्टली अंकुर भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको अपने आप को बताना पड़ेगा यस आई कैन डू इट। दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप अपने आप को नहीं बताओगे तो आप कभी भी नहीं बना पाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू एनीथिंग इज टू बिलीव कि आप कर सकते हो, और वो बिलीव आपने जगाया है। Wow, awesome, awesome. And Sachin, I would in fact love to ask you, in fact, क्या results आपके दिमाग के अंदर थे, एक होता है ना, कि when you get into something, आप हमेशा पहले ये सोचते हो कि ये results क्या, मुझे results क्या मिलेंगे? So I want to know that, I want to dive straight into it कि क्या results आपके दिमाग में थे, videos को बनाने से पहले, कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इससे मेरी ये expectation है. If you could just give a little bit light on that, that will be awesome. या अंकुर भाई देखो, वीडियोस बनाने से पहले, इस जर्नी को शुरू करने से पहले, आई ऑलवेज वांट टू बी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माय ब्रांड। मैं अपने ब्रांड के साथ ना अपने आप को अटैच करके और उसको देखना चाहता था। देखो, अब टीवी के ऊपर ऐड देना या कहीं पर भी कमर्शियल देना इज नॉट नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग फॉर अवर काइंड ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आपको करोड़ों रुपए टीवी के 10 सेकंड के लिए ऐड के लिए देने पड़ जाते हैं। तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अवर काइंड ऑफ बिजनेस। तो वहां पर मेरा हमेशा से ये था कि हाउ कैन आई बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई ब्रांड। जैसे आपने देखा होगा वो पतंजलि के साथ जो है ना, रामदेव, हमेशा आपको दिखता है उसने किसी ब्रांड को एम्बेसडर को नहीं किया, वो खुद ब्रांड एम्बेसडर बन गया। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांट टू बी, आई वांट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई ब्रांड। तो वो मैं अपने आप को ऐसे देखना चाहता था, ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे करता था, बट उसके लिए कहीं पर भी मेरे को कोई चीजें या उसका कोई पाथ समझ नहीं आ रहा था। बट वंस आई हर्ड योर थिंग, योर स्टोरी, योर वीडियोस काइंड ऑफ थिंग, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ, दिस इज द स्टार्टिंग जहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, अपनी वीडियोस बना सकता हूँ, अपने ब्रांड के साथ अपने चेहरे को अटैच कर सकता हूँ, सो दैट पीपल कैन रिकॉग्नाइज माई फेस विद माई ब्रांड और माई ब्रांड विद माई फेस, बोथ वेज। सो दिस वॉज द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माई माइंड कि भाई यार, मैं ना अपने ब्रांड के साथ अपने आप को अटैच कर दूं और जहां पर भी जाऊं लोग ग्लोबीम और सचिन को एक साथ बात करें। Very nice, very nice. I think this is truly impeccable. Sachin, जो आपने बात बोली ना, I think ये बहुत हार्ट टचिंग है, और एक स्पेसिफिकली हर एक बिजनेस ओनर की ना, ये कहीं ना कहीं एक चाह होती है। जितने भी बिजनेस ओनर्स आई थिंक देख रहे होंगे, वो इस बात से सहमत होंगे कि हम लोग बिजनेस के दो पहलू होते हैं, लाइक एक, if one side is to make money and the another side is acknowledgement, is recognition, कि एक recognition मुझे मिले कहीं ना कहीं। तो क्या सचिन, वो उस बात से आप कोरिलेट कर पा रहे हैं कि जो recognition है, ये एक बहुत एक important pivotal part होता है हमारी लाइफ का? वेरी इंपॉर्टेंट अंकुर भाई, जब आप एक लेवल से ऊपर उठते हैं ना, व्हेन यू अर्न सम मनी, देन मनी बिकम्स अ लिटिल स्मॉलर, और आपको अपनी रिकॉग्निशन से ज्यादा प्यार होने लगता है। आप चाहते हो कि आप अपने ब्रांड में, अपनी इंडस्ट्री में, जहां पर भी आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन योर वुड इंडस्ट्री, तो आप चाहते हो कि आपकी इंडस्ट्री में आपको एज अ अथॉरिटी, एज एन परसीव्ड एक्सपर्ट आपको लोग लें। तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज वांट टू बी, कि लोग, मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूं एंड आई हैव गिवन मेनी मेनी प्रोडक्ट्स टू माई इंडस्ट्री जो कि पहले इंडस्ट्री में नहीं थे, और लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। बट स्टिल कहीं ना कहीं वो एक दिमाग में था कि लोग मेरी फेस को मेरे ब्रांड के साथ नहीं जोड़ पाते, दे डोंट नो हु आई एम। Absolutely, I think it's truly marvelous, Sachin, to have you over here with me, and the insights, जो आप शेयर कर रहे हो ना, वो एक बिजनेस ओनर को आई थिंक सीधा बिल्कुल बैंग ऑन, बिल्कुल वो उनसे रिलेट कर पा रहे होंगे, और बहुत बहुत हद तक सहमत होंगे इस बात से कि कहीं ना कहीं एक बिजनेस ओनर ना रोजमर्रा की एक ऑपरेशंस के अंदर एक इतना ज्यादा फंसता चले जाता है कि कहीं ना कहीं जो एक रिजल्ट्स के साथ एक कहीं ना कहीं एक जो रिश्ता है ना, वो धीरे धीरे डिमिनिश होता चले जाता है। और जैसे वो रिश्ता डिमिनिश होता है ना, वो कहते हैं ना, वे अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब उससे आपकी उस तरफ आपकी अटेंशन नहीं जाती, तो आपकी एनर्जी भी नहीं जाती, और जब एनर्जी नहीं जाती तो सर्टेनली वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, बिल्कुल नहीं मिल पाते अंकुर भाई। हम ना, जो हमारा बिजनेस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से हमारे को प्रॉफिट मिलता है, सेल्स मिलती है, मार्केटिंग, हम उसको हमेशा से सबसे नीचे रखते हैं। आई मेट हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस ओनर्स, कोई भी मार्केटिंग एंड सेल्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन देयर ऑपरेशंस। उनको वो टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी बिजनेस की ग्रोथ के बारे में, बिजनेस की सेल्स के बारे में, बिजनेस को मार्केट करने के बारे में सोचें। वी पुट मार्केट ऑन द लीस्ट स्टेप। सो सचिन भाई, इसमें मैं आपसे एक चीज ये पूछूंगा कि वीडियोस बना के ऑपरेशन से आपको क्या लगता है कि आदमी कोई फ्री हो सकता है, या आपको क्या लगता है कि आप फ्री हो पाएंगे?
बिल्कुल अंकुर भाई, अभी तो स्टार्टिंग है, वीडियोस मैंने बनानी स्टार्ट कर दी हैं, और मैंने सबसे हाँ। पहले जो वीडियोस बनाई हैं वो मैंने उन चीजों की बनाई हैं जो मेरे सेल्स टीम में 4-5 लोग हैं, वो कॉल करते थे, कुछ आउट ऑफ द वे क्वेश्चन आता था, और मैं उनको मैनी टाइम्स, हंड्रेड ऑफ टाइम्स उनको समझा चुका हूँ, उनको लिख के दे चुका हूँ, बट थोड़े दिन के बाद या तो बंदा चेंज हो जाता है, या वो चीजें उनके दिमाग से वॉश आउट हो जाती हैं, या वो कहते हैं कि सर फाइल नहीं मिल रही। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सारे के सारे मेरे बिजनेस के जितने भी FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मैं उनके ऊपर एक 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 करके वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पे डाल दूंगा। दिस इज गोइंग टू एंड फॉर एवर। कोई क्वेश्चन नहीं आएगा सेल्स टीम का मेरे मेरे पास नहीं आएगा, यूट्यूब पे जाएगा, बंदा देखेगा, ओके करेगा, परचेज करेगा, दैट्स इट। दिस इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग विच आई गॉट फ्रॉम यू। And what does this means to you, Sachin? If I ask you, मतलब क्या आप possibilities देख पा रहे हैं इससे? पॉसिबिलिटीज तो अंकुर भाई इतनी ज्यादा है कि देख भी नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज जो जो मेरी सेल्स टीम के साथ अभी मैं वर्किंग कर रहा था 3-4-5 लोगों के साथ, और मैं ये सोच रहा था कि अगर मुझे एक लेवल पे जाना है, अगर मुझे अपनी कंपनी को 1000 करोड़ कंपनी बनाना है, तो आई नीड एटलीस्ट 200 पीपल। सेल्स टीम की जो एक टीम चाहिए, कम से कम 200 बंदों की सेल्स टीम चाहिए, जिसके लिए कि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ इतनी बड़ी टीम को अपॉइंट करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा, एक मिडिल क्लास बिजनेस ऑनर, 200 या 150 या 100 लोगों की सेल्स टीम के लिए प्रिपेयर्ड होगा उनका बटन लेने के लिए। तो आज की डेट में जब मैं वीडियो से कंफर्टेबल हो गया हूँ, अभी वेबिनार्स हमने कंडक्ट किया, हमने लास्ट 10 डेज पहले एक वेबिनार कंडक्ट किया अपनी इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे 100 इंडस्ट्री के जो हमारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स थे, जिनसे हमारी पिछले 3 महीने में लॉकडाउन में बात चल रही थी, मैंने सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनमें वैल्यू ऐड कर दी, उनको बिजनेस दोबारा से कोरोना के बाद स्टार्ट कैसे करना है वो समझा दिया। तो अंकुर भाई, आप मतलब मेरे को आज 10 दिन हो गए, अभी तक भी लोगों के कॉल्स आ रहे हैं थैंक यू के, कि उनको ये बताने के लिए कि उनको ये जो चीज मैंने दी, जो मैंने वैल्यू ऐड करी, मैंने उस वेबिनार में उनको कुछ नहीं बेचा। आई डिडंट इंटेंड टू सेल एनीथिंग इन दैट वेबिनार, आई जस्ट इंटेंड टू ऐड वैल्यू इनटू दैट। तो वो जो वैल्यू उनके जीवन में ऐड हुई, उनकी लाइफ में ऐड हुई, उनका बिजनेस वापस से रीस्टार्ट हो गया। तो नाउ दे टुक मी एज एन अथॉरिटी कि यार ये बंदा तो हमारे को बिना किसी चीज के सिखा रहा है, इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है। नाउ दे टुक मी एज एन अथॉरिटी। So Sachin, if you could just briefly take us back, एक होता ना कि थोड़ा सा आप अगर हमें पीछे लेके जाएं, तो कि जैसे आपने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट करी, तो फर्स्ट व्हाट वाज, जब आपने बनाना स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद ये वेबिनार का थॉट कहाँ से आया, कैसे हुआ? इफ यू कुड जस्ट क्विकली पुट अ लिटिल लाइट ऑन दैट विल बी ऑसम। या श्योर अंकुर भाई, मैंने वीडियोस बनाई, 2 या 3 वीडियोस बनाई, बट बिकॉज लॉकडाउन था, कुछ भी चीज चल नहीं रही थी, मैंने वीडियोस बना के अपलोड करने की कोशिश भी करी, 2-4 लोगों को भेजा भी। बट मुझे उस समय ना ये समझ में आया कि जो मेरा कस्टमर है, जो मेरा प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, जो मेरे डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अभी वो फंसे हुए हैं अपनी ही एक उधेड़-बुन में कि बिजनेस शुरू करूं या जान बचाऊं। तो मुझे ना अभी अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनाने से ज्यादा अपने क्लाइंट की लाइफ में वैल्यू ऐड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, जो कि मैंने करना शुरू किया। जैसा कि आपका मेरा डिस्कशन हुआ था, PQMR, अपने क्लाइंट की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, मैंने शुरू किया। बट ना एक एक के साथ बात करने में आधा आधा घंटा लग रहा था, मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा था बट टाइम बहुत जा रहा था। तो मैंने अगर देखा कि अगर मेरे को 100 लोगों को टैकल करना है, तो वेबिनार इज द बेस्ट ऑप्शन। एक बार में सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाओ, सबकी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करो और 2 घंटे का एक वेबिनार डिलीवर कर दो। सब बंदों को अपने अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए, एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। उनको मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ लोगों ने मुझे क्रॉम्पटन जैसी कंपनी से कंपेयर किया। अंकुर भाई, कैन यू बिलीव कि क्रॉम्पटन जैसी कंपनी सर इस तरीके का कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही जो आपने किया, हम लोगों को यहाँ इकट्ठा करके, और हमें आप बता रहे हो कि बिजनेस दोबारा शुरू कैसे करना है। मतलब दे टुक मी, मतलब बिगर देन क्रॉम्पटन। सो आप समझ सकते हो, अब जो ड्रीम था, जो एक रिकॉग्निशन का ड्रीम था, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, नाउ दैट इज कमिंग ट्रू। ट्रू, एब्सोल्युटली। और ये वेबिनार करने से पहले, वन टू मेनी करने से पहले क्या चीजें, क्या एप्रीहेंशंस आपके दिमाग में आ रही थी? कभी मतलब, क्योंकि आपने कोई बहुत ज्यादा वीडियोस भी नहीं बनाई, एंड यू बिकेम अ सक्सेस स्टोरी। आई थिंक यू जस्ट कंप्लीटेड अ कोर्स हार्डली 1 मंथ बैक, राइट? 25 डेज हुए होंगे अभी। तो 25 दिन के अंदर अंदर आपने सोच भी लिया, इम्प्लीमेंट भी कर लिया। आई थिंक इट्स, आई रियली सैल्यूट एंड हैट्स ऑफ टू योर कमिटमेंट एंड योर इंटेग्रिटी टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन। नहीं तो बहुत लोग होते हैं वो लर्न करते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो या इंप्लीमेंट करते तो उस पेस पे नहीं कर पाते। आपने जितनी पेस पे इंप्लीमेंट किया सचिन, दैट इज ट्रूली इम्पेकेबल। आई वुड लव टू नो कि वो वेबिनार करने से पहले आपके दिमाग में क्या एप्रीहेंशंस थे, थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताएं तो दैट विल बी ग्रेट। वेरी ट्रू अंकुर भाई, हमने ना वेबिनार प्लान
2-3 बार करने की कोशिश की। इनफैक्ट जो आप कह रहे हो पेस पे, उससे भी जल्दी कर दिया था मैंने तो, बट कहीं ना कहीं एक डर था, मैं उसको पोस्टपोन कर दिया। मैंने एक बार प्लान किया, हमने लॉन्च नहीं किया, कोई डेट्स डिसाइड नहीं करी, क्रिएटिव्स नहीं बने, हमने पोस्टपोन कर दिया। तो एक दिन मैं रात को बैठा हुआ था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि यार ये पोस्टपोन अगर मैं करता रहूंगा तो ये कभी भी होने वाला नहीं है। आई कॉल्ड माई पर्सन, माई टीममेट, के सुबह क्रिएटिव बनाओ, उसको मैंने डेट और टाइम बताया, मैंने कहा सबको भेज दो। मेरे पास कोई प्लान नहीं था, आई वॉज नॉट हैविंग एनी प्लान एट ऑल। आई जस्ट स्टार्टेड इट रिवर्स, लॉन्च कर दो, डेट डिसाइड कर दो, सबको बता दो, अब तो करना ही पड़ेगा, अब ऑप्शन ही कोई नहीं है। सो इसमें सचिन मैं ना एक बात बोलूंगा, जो मुझे एक ट्रेनर है मेरे, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बोली, बोला देयर आर टू चॉइसेस, फर्स्ट चॉइस इज कि यू एम एंड देन यू फायर, एंड द सेकंड चॉइस इज यू फायर एंड देन यू एम। एग्जैक्टली, आई थिंक आपने जो सेकंड वाला किया, यू फायर्ड एंड देन यू एम कि यार क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो। और दूसरी बात यहाँ पर एक बहुत सचिन इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जो मैं अक्सर बहुत ज्यादा टी हावैकर की बोलता हूँ, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट है, और जितने भी व्यूअर्स होंगे आई थिंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी सचिन, इफ यू अग्री। और वो में भी हमने काफी बार डिस्कस करी कि इफ योर व्हाई इज क्लियर, योर हाउ बिकम्स इजी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो अंकुर भाई, ये वाई जो मेरी क्लियर हुई ना, ये जब मैंने अपने क्लाइंट से बात करी, मैंने उसकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए मैंने उससे बात करी, तो मेरा वाई क्लियर हुआ कि वैल्यू अगर क्लाइंट के लाइफ में ऐड करनी है, उसके बिजनेस में ऐड करनी है, तो राइट नाउ प्रोडक्ट इज नॉट द राइट वाई। राइट वाई इज टू हाउ टू स्टार्ट हिज बिजनेस। एक बार उसका बिजनेस स्टार्ट करा दो, आपका वो क्लाइंट नहीं है, वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, अगर उसका बिजनेस स्टार्ट हो गया आपकी वजह से, वो डेफिनेटली बिजनेस स्टार्ट होते सबसे पहले आपको ऑर्डर देगा अंकुर भाई। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि आप वैल्यू ऐड करते जाओ, बिजनेस ऑटोमेटिक आएगा। Wow, awesome. I think this is truly eye opening, Sachin. मतलब बहुत eye opening है कि with no video, just 2-3 videos just to start, and then immediately getting to a webinar of 100 people. And how many webinars have you done within last like 15 days? We have conducted 2 webinars and the third is already planned. Wow, that's awesome. And how many, what was the strength in every webinar? In the first webinar, it was almost 97-98 people with 150 registrations. And in the second webinar, we have 142 people sitting in the Zoom room with 190 registrations. My God, that's truly marvelous. I mean truly appreciable to get. अच्छा, एक बात बताओ, आपके दिमाग में ये भी था कि ये कोई लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, वेबिनार लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, या लोग आएंगे कहाँ से उस वेबिनार में, इसके ऊपर अगर व्हाट डिड यू फेल्ट अबाउट इट? बिल्कुल था अंकुर भाई। और जब हमने वेबिनार की डेट्स लॉन्च करी और होने में 5 दिन का टाइम था, डे 1 पे हमारे पास सिर्फ 3 रजिस्ट्रेशन आए, एंड आई वाज वेरी वेरी अपसेट एंड आई वाज डाउन कि यार ये क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे सेकंड डे, थर्ड डे आता गया, रजिस्ट्रेशन फ्लो होने गए, मेरा मोरल अपने आप बढ़ता गया। और जो वेबिनार का कंटेंट था, यू डोंट बिलीव कि मैंने तैयार कुछ नहीं किया था। वो लास्ट डे मैं बैठा 3 घंटे के लिए और मैंने पूरा कंटेंट लिख डाला इन जस्ट 3 आवर्स। सो इट इज ऑल अबाउट एनर्जी। आपको ना एक बार एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है, और जब आप उस एनर्जी के फ्लो में आ जाते हो ना, तो एवरीथिंग गोज विद एनर्जी। Awesome. I think this is truly eye opening. And from 3 people registration to having 100-150 registrations is not a small, I mean it's a big jump, right? Right. Awesome. It's truly amazing to hear, Sachin, what you've achieved and what you've done in this 1 month's time of lockdown. बहुत से लोग लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे थे, बट you took an action to actually get out of your comfort zone, to get into an uncomfortable zone, create more videos for yourself, achieve more freedom. Now I want to ask you, इस webinar strategy पे आके आपने फॉर एग्जाम्पल अभी जूम मीटिंग्स भी करना, जैसे आपने बताया कि मैंने जूम मीटिंग्स भी करना स्टार्ट कर दिए, तो वीडियो सीखने के बाद आपने पहले अपने 1-to-1 को इफेक्टिव किया जूम मीटिंग से, और उसके बाद अब आपने 1-to-many को वेबिनार्स के थ्रू किया, राइट? दिस इज व्हाट यू मीन? एग्जैक्टली। पहले वीडियोस के साथ मैंने जब इनिशियली जो वीडियोस के आगे, कैमरे के आगे खड़े होने की जो हिच थी, वो 2-3-4 वीडियोस के बाद मेरी निकल गई। जब मेरी निकली तो मैंने 1-2 लोगों के साथ जूम मीटिंग करी, तो मुझे कंफर्टेबल हो गया कि आई कैन डू इट। अब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये दिस इज ऑल्सो जूम मीटिंग काइंड ऑफ अ थिंग, और मैं बड़ी कंफर्टेबली आपसे बात कर पा रहा हूँ। अगर आज यही आप मेरे को नैनो वीडियो से पहले बोलते, तो आई थिंक मैं शायद आपसे बात नहीं कर पाता यहाँ बैठ के। तो पहले मैंने वीडियोस के साथ अपने आप को कंफर्टेबल किया, देन आई मेड कंफर्टेबल माई सेल्फ विद जूम मीटिंग्स, देन आई गो फॉर वेबिनार। बिकॉज जूम मीटिंग करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि कैमरे में देखना है और डिलीवर करना है, कुछ नहीं करना। और जो पावर है,
जो पावर है ना अंकुर भाई, जो वो सामने बंदे बैठे होते हैं ना, पावर आपको वहां से ऑटोमेटिक मिलती है। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, मैं बैठा था उस वेबिनार में ये लेके कि यहाँ जो बैठा हुआ बंदा है 100 बंदे, एक एक बंदे की लाइफ में वैल्यू ऐड करके भेजूंगा आज। तो दिस वाज माय वाई। तो जब वो वाई क्लियर थी, एनर्जी अपने आप आ रही थी और डिलीवरी अपने आप हो रही थी, आपको कुछ नहीं Awesome. करना। Awesome, awesome. I think it's truly marvelous. You know, that's all what मतलब मेरे पास words short है इसको चीज को express करने के लिए सचिन की कितनी amazing चीज है, you know, जो आपने इतनी quickly अपने business के अंदर implement कर ली. People were stuck, people were having so much of problem, people were deep down into mess कि यार हम लोग business करें तो कैसे करें, sales and marketing को manage करें कैसे करें, sales and marketing को किस तरीके से आगे drive करें, करे भी या नहीं करें, अपनी टीम है तो टीम को कैसे ड्राइव करें, टीम मिलने नहीं जा सकती, हम मिलने नहीं जा सकते तो कस्टमर से कैसे मिलेंगे, कस्टमर हमसे कैसे इंटरेक्ट करेगा। राइट। आपने उन सब पूरे के पूरे मैस से बाहर निकलने के अपने आप को जिस तरीके से पोजीशन करके ना ही 1-to-1 अपने इफेक्टिव किया, बट 1-to-many कर लिया, जो आपने शायद कभी भी नहीं किया। आई मीन दिस इज इट अमेजिंग विद इन 1 month ऑफ टाइम फॉर यू? आई मीन ये एक जो जर्नी है ना अंकुर भाई, अभी तक तो थोड़ा सा कई बार रात को सोते हुए ना सपना सा लगता है, कई बार लगता है कि मैं वापस वहीं पर ही हूँ जहां था, बट फिर पता लगता है नहीं नहीं, इट इज अ रियलिटी। तो इस सारी जर्नी के अंदर ना, आई जस्ट वांट टू कन्वे वन थिंग टू एवरीबॉडी प्रेजेंट ओवर हियर। बट सचिन बिफोर दैट आई वुड लव टू आस्क यू वन थिंग इफ यू अलाउ मी। या श्योर। अब आप मुझे एक बात बताओ कि वेबिनार करने के बाद ना, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो जो आपकी इस स्टोरी से मोटिवेट होंगे, इंस्टिगेट होंगे, क्या रिजल्ट्स अब आपको या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको अपने बिजनेस के लिए दिख रही हैं और जो आपको लगता है कि वो उनके लिए भी प्रोड्यूस हो सकती हैं? आप क्या बोलना चाहोगे? अगर भाई देखो, जो पॉसिबिलिटीज हैं, जब आप वंस यू बिकम कंफर्टेबल विद वीडियोस, जो ये वीडियो का ये ट्रेवल है ना, ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, इसको मैं एक वीडियो की जर्नी नहीं बोलूंगा, इट इज अ जर्नी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज मैं अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं आज एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपके साथ खुल के 1-to-1। बहुत सारे लोग इस चीज को देख रहे हैं, तो इट इज अ जर्नी ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जब आप वीडियोस बनाने में कंफर्टेबल हो जाते हो ना, जब आपको कंटेंट लिख के वीडियो नहीं बनानी पड़ती, आपने कैमरा ऑन किया और आपने अपने मन की बात अपने क्लाइंट को बोल दी, तो वो जो फ्रीडम होती है उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी कोई आप उसकी ना वैल्यूएशन नहीं कर सकते। और उससे जो आपको मिलेगा, जो बिजनेस आपको मिलेगा, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि अब आज की डेट में जो लोग मेरे इस वेबिनार में थे, ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन टुक मी एज एन अथॉरिटी। अब कल की डेट में मुझे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई मुझे अपने प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, कुछ प्रोडक्ट जो मेरे लॉन्च्ड हैं चल नहीं पाए किसी वजह से, मैं उनकी उठाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उनका किस तरीके से वो वर्क करते हैं, क्या उनकी यूएसपीज है, एक वीडियो बनाऊंगा, डाल दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी प्रोडक्ट अब ऐसा होगा जिसको मैं बोलूंगा कि ये कम चलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियोस। वाओ वाओ, दैट्स ऑसम। और वेबिनार से आपको क्या लग रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज, आपको उतनी सेल्स टीम चाहिए होगी अब वेबिनार्स के बाद, या क्या आपको उसका क्या इम्पैक्ट लग रहा है उस चीज को अगर दिमाग में रखते तो? नहीं अंकुर भाई, अब सेल्स टीम की जरूरत मुझे सिर्फ मेरे ऑफिस में बैठने के लिए स्टाफ की है। 3-4-5 लोग ही मेरे लिए काफी हैं। फील्ड में जाने के लिए मेरे को किसी स्टाफ की जरूरत नहीं है, बिकॉज फील्ड में अब मैं नहीं जाऊंगा, मेरा स्टाफ नहीं जाएगा, मेरी वीडियोज जाएंगी। जहां पर भी जरूरत है मेरी वीडियो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि अब मैं हर चीज, अपने सारे प्रोडक्ट्स, सारी इंफॉर्मेशन, सारे एफएक्यूज, अपनी कंपनी का कॉर्पोरेट वीडियो, एवरीथिंग आई विल मेक अब। हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया अपने ग्लोबिन का यूट्यूब चैनल, सब चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी। हम अपने हर बॉक्स के ऊपर यूट्यूब का स्कैन कोड डालने वाले हैं। बंदा प्रोडक्ट परचेज करेगा, स्कैन करेगा, यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन वहां अवेलेबल है उसके लिए। तो ही कैन see each and every information about me, my company and my product over there, and how to take care, how to repair, everything is available on YouTube। अब उसे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मुझे सेल्स टीम की जरूरत नहीं है। इनिशियली जो मुझे लग रहा था कि अभी मेरा 3-4 लाख का सेल्स टीम का खर्चा है, मेरे को 15 लाख करना है, 20 लाख करना है, अब मेरे को कुछ नहीं करना है। मुझे सिर्फ फोकस करना है अपने आप को प्रमोट करने पे, मुझे अपनी फेस वैल्यू को प्रमोट करना है। Awesome. I think this is truly impeccable. सचिन, I would love to ask, क्योंकि हम सारे बिजनेस करते हैं और बिजनेस का जो एंड रिजल्ट है ना वो प्रॉफिट होता है। डू यू एग्री और नॉट? एग्जैक्टली बिजनेस करने का मोस्ट रीजन ही प्रॉफिट है। मोस्ट रीजन प्रॉफिट है। और कल की जो जगमोहन जी का जो सेशन था उसमें जगमोहन जी ने इतनी मेरे भी दिमाग की जो है ना बहुत सारी इनफैक्ट माइंड ओपनिंग्स करी उन्होंने कि कैश फ्लो कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं मतलब प्रॉफिट को अगर हम टच अपॉन करें तो आपको अब इस मूव से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट नजर आ रहा है? जैसे आपने बताया सेल्स
मैं सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के एंगल से जानना चाहूंगा कि सेल्स आपको कैसे ग्रो होते हुए नजर आ रही है और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा उसका। अंकुर भाई, प्रॉफिटेबिलिटी पे ना टाइम के साथ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में मैं अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को बाकी सारे प्रोडक्ट से ऊपर देख पा रहा हूँ। हमने प्लान बना लिया है किस तरीके से हमें अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है। बिकॉज प्रॉफिट क्यों नहीं मिलता हमारे को? हम प्रॉफिट इसलिए नहीं ले पाते कि सारे के सारे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वही बेच रहे हैं जो हम बेच रहे हैं। सेम प्लेटफॉर्म पे हैं हम लोग। अगर वो आलू बेच रहा है तो हम भी आलू बेच रहे हैं, तो अब फर्क क्या है? फर्क तो कुछ भी नहीं है। अब मेरे को जो फर्क मिला, हमारी कंपनी एज अ परसीव्ड एक्सपर्ट उसके दिमाग में घुस गई कि ग्लो बीम का जो प्रोडक्ट है वो एक एक्सपर्टीज के साथ बना हुआ है, सिस्टम के साथ बना हुआ है। अगर मुझे 5 रुपए ज्यादा भी देने हैं ग्लो बीम के प्रोडक्ट पे तो मैं दे सकता हूं, बिकॉज दे नो एक्सपर्टीज है उन लोगों की। वो मेरे को एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे जिसकी लाइफ ज्यादा होगी, और जिसकी कॉस्ट मैटर नहीं करती, लाइफ मैटर करती है। तो यहाँ जो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी ना, वो तब होगी जब आप अपने आप को एज एन अथॉरिटी, एज अ परसीव्ड एक्सपर्ट प्रूव कर दोगे अपनी इंडस्ट्री का, जो कि हमने अपनी कंपनी को करना शुरू कर दिया है। और आपके सपोर्ट से हम धीरे धीरे इसको और आगे लेके जाएंगे, और सारी चीजों को, और नई जो चीजें हमारी आने वाली है आपके और हमारी कोलैबोरेशन में, हम उनको साथ में लॉन्च करेंगे। Awesome, awesome, awesome. Now I would just like to ask you one thing कि ये तो गया सेल्स एंड प्रॉफिट के एंगल से। जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, what's the one or two messages which you have for them? I would love to, love few words from you, for them. अगर भाई देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं सारे बिजनेस ओनर्स को कहना चाहता हूँ कि ना, रुकना नहीं है। क्योंकि कोई भी स्किल, कोई भी लर्नेबल स्किल को जब हम लर्न करने की कोशिश करते हैं ना, तो 90% हम लोग स्टार्ट करने से पहले रुक जाते हैं उसके इफ एंड बट सोच के। जब आपसे मेरी बात हुई थी, मेरे भी दिमाग में एक था यार, वीडियो मेरे लिए, मैं करूंगा, कर पाऊंगा, डिलीवर कर पाऊंगा। तो वो बहुत सारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो हमें लेवल 1 पे ही रोक देते हैं। तो लेवल 1 पे रुकना नहीं है। अगर लेवल 1 पे आज मैं रुक गया होता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रुकना नहीं है, डरना नहीं है, और अपने आप को एक बिलीफ सिस्टम ऐसा अपने अंदर डेवलप करना है कि आई कैन डू इट। तो जब वो आई कैन डू इट वाली एनर्जी से आप सब लोग बिजनेस ओनर काम करेंगे ना, तो कोई भी स्किल, कोई भी लर्नेबल स्किल ऐसा नहीं है कि जो कोई सीख नहीं सकता। एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। जहां पे आप हो, जहां पे मैं हूं, या जहां पे जो लोग सुन रहे हैं वो हैं, एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। जस्ट जरूरत है सिर्फ एक करेज की, एक कदम बढ़ाने की। उठो, कदम बढ़ाओ, चीज को सीखना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली चीजें लाइन अप हो जाएंगी। Awesome. I think this is truly eye-opening, Sachin, and it's very amazingly, very well said and very well put up. कि अगर आप एक बार एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, और आप अपने फियर को नहीं आगे आने देते उस चीज के। एक बार आप फियर को, फियर इज जस्ट एन एंटिसिपेशन ऑफ पेन, वही आपने जो समझाया। और एक बार हम उस एंटिसिपेशन के पेन को हटाते हैं और जब एक्शन लेते हैं, और जो मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ वर्कशॉप में, गेटिंग टू इज नॉट इम्पोर्टेंट, गेटिंग थ्रू इज इम्पोर्टेंट। तो आपने थ्रू किया, और आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन यू I think you're the first one to enter into this Nanopreneur Club. I would really like to acknowledge you, for taking this massive action in your life and for giving such a lovely insights, to all the business owners. We really had a great time, Sachin, hosting you up over there on this Nanopreneur Club. And once again, I would really like to acknowledge all the audiences who've been watching this live right now, or who would be watching them after that. It was indeed a pleasure to serve you all. I am certain that this video would not be just a video for you to learn something about video, but this would be an eye-opening for you, because your business is just one video away from the success you want. And if you are feeling at this point of time that it is one step away, then I would just like to bridge that one step also by just announcing one single thing, that tomorrow I'm going to give each one of you as a bonus a free webinar, an access to the free webinar, wherein Sachin bhai, everyone will be invited to just the access the same principles what Sachin implemented and what got him the massive success. All the links are right up over there, pasted on this FB live. You can just access it, register now, and I would be seeing you tomorrow. Once again, Sachin, thank you so much for your precious time and for giving the valuable insights. It was really indeed a pleasure to host you, and looking forward to serve you again.
Thank you to Thank you. you so much. Thank you, audience. God bless. Stay safe and stay healthy. Thank you. Bye bye. Take care. Bye, bye, Sachin. Bye bye.